السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں۔ وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ متحدہ ضلع نظام آباد میں سابقہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی جنم دن تقاریب کا کیا گیا شاندار پیمانے پر انعقاد۔ TRS پارٹی قائدین و حامیوں نے کیک کٹ کرتے جشن کا کیا انعقاد۔ تلنگانہ کے اسکولوں کو مارچ کے دوسرے ہفتے سے آدھا دن کا اسکول۔ گاؤں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے خصوصی دلچسپی کے تحت خدمات انجام دے۔ خواتین سرپنچوں کی تربیتی پروگرام سے کلکٹر الا ترپاٹی۔ عوام مجھے فراموش کرتے ہیں تو مقابلہ نہیں کروں گا۔ کامریڈی BJP دفتر میں قیام عمل میں لائے گئے میڈیا اجلاس سے MLA کاٹیپلی وینکٹا رامنا ریڈی نے کیا اظہار۔ حیدرآباد میں واقع پرجا بھون کے روبرو تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کیا احتجاج۔ بزرگ و معذورین کے وظیفے میں اضافہ کرنے کا حکومت سے کیا مطالبہ۔ رمضان میں سرکاری مسلم ملازمین کو شام 4 بجے دفتر سے گھر جانے کی اجازت۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے سرکاری احکامات جاری۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ روشنی ٹی وی ناظرین، رمضان المبارک کے استقبال کے مد نظر ایک خاص رپورٹ روشنی ٹی وی کی جانب سے۔ رمضان اللہ کا مہینہ، رحمت کی بارش اور نجات کا سنہرا موقع۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ معزز ناظرین اکرام، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ اپنے نام سے منسوب فرمایا، رمضان المبارک۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، یہ اس مہینے کی عظمت کا اعلان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، جو تمام مہینوں سے سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ سوچئے، قرآن جیسی عظیم نعمت کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ رمضان میں نازل کی گئی کہ اگر کوئی اپنی زندگی کو نور ہدایت سے بھرنا چاہتا ہے تو وہ رمضان کو تھام لے۔ یہ مہینہ رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب بتائیے، اگر ایسے ماحول میں بھی انسان نہ بدلے تو پھر کب بدلے گا؟ پہلا عشرہ، عشرہ رحمت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرماتا ہے، آؤ میری رحمت کی طرف آؤ۔
दूसरा आशरा मग़फ़िरत का होता है, गुनाहों के दफ्तर साफ़ किए जाते हैं, ख़ताएँ माफ़ की जाती हैं। तीसरा आशरा जहन्नुम से निजात, अल्लाह ताला हर दिन और हर रात लोगों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाते हैं। रमज़ान दुआओं की कबूलियत का महीना है। हर रोज़ेदार के लिए हर दिन कम अज़ कम एक दुआ ज़रूर कबूल की जाती है, मगर अफसोस हमने दुआ मांगना छोड़ दिया और शिकायत करना सीख लिया। रमज़ान आज़मत, बरकत और अजर का महीना है, नफ़ल इबादत फ़र्ज़ के बराबर। इस महीने में नफ़ल इबादत फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ इबादत 70 गुना बढ़ा दी जाती है। ये वो महीना है जिसमें सोने वाला भी इबादत में होता है, खामोश रहने वाला भी इबादत में होता है। सवाल ये नहीं कि रमज़ान आया या नहीं, सवाल ये है कि रमज़ान ने हमें बदला या नहीं। क्या हमारी नमाज बदली? क्या हमने गुनाह को छोड़ा? क्या हमारा दिल नर्म हुआ? क्या हमारी आँखें अल्लाह के खौफ से रोई हैं? अगर नहीं तो डरिए, कहीं ऐसा ना हो कि रमज़ान आकर गुज़र जाए और हम महरूम रह जाएं। ए अल्लाह के बंदों और बंदियों, ये वो महीना है जो दोबारा मिलना ज़रूरी नहीं, ये सांसें वापस आना ज़रूरी नहीं है। आज ही फ़ैसला कर लें कि ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी बदलने वाला रमज़ान होगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की क़द्र करने, उसके नूर को अपनाने और इस महीने को नजात का ज़रिया बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम। मजलिस कॉरपोरेटर मीर मुमताज़ अली हल्फ लेने के फौरी बाद अवाम के दरमियान पहुंच गए। ज़ाती खर्च पर बोरवेल की तनसीब के ऐलान पर अवाम में खुशी की लहर, शानदार इस्तकबाल। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद में हल्फ लेने के बाद डिवीज़न नंबर 14 के नए मजलिस कॉरपोरेटर एडवोकेट मीर मुमताज़ अली ने एक मिसाल कायम की। इन्होंने जीत का जश्न मनाने या आराम करने के बजाय सीधा अवाम के बीच जाकर काम शुरू करने को तरजीह दी। पहले दिन गंदे पानी के मसले का फौरी हल करें। इंतखाबी मुहिम के दौरान भवानी होटल के सामने रहने वाले मकीनों को गंदे और मैले पानी की शिकायत का मसला दरपेश था। उस वक्त एडवोकेट मीर मुमताज़ अली ने मजलिस उम्मीदवार की हैसियत से वादा किया था कि वो मुंतखब होने के फौरी बाद इस मसले को सबसे पहले हल करेंगे। हल्फ बर्दारी के फौरी बाद मजलिस कॉरपोरेटर मीर मुमताज़ अली ने वालिद मोहतरम सीनियर लीडर मीर मजाज अली साबिक़ा डिप्टी मेयर की सरपरस्ती में इस इलाके में पहुंचे। चूँकि ये काम अंजाम देने के लिए सरकारी फंड्स की मंजूरी में वक्त लगता है और आवाम की परेशानियां बढ़ रही थी, इसलिए कॉरपोरेटर मीर मुमताज़ अली ने सरकारी मंजूरी का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि खिदमत और फराग दिली का मुजाहरा करते हुए अपनी ज़ाती खर्च से वहां पर नए बोरवेल की तनसीब का काम शुरू किया है, ताकि इस इलाके के मकीनों को साफ पानी मिल सके। कॉरपोरेटर मीर मुमताज़ अली की आमद पर मुकामी लोगों की जानिब से इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मीर मुमताज़ अली की जानिब से अपने ज़ाती खर्च पर बोरवेल की तनसीब अमल में लाने के ऐलान पर वहां के अवाम ने मीर मजाज अली और मीर मुमताज़ अली की बकसरत गुलपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। कॉरपोरेटर मीर मुमताज़ अली ने डिवीज़न नंबर 14 के तमाम इलाकों में ड्रेन की तामीरी कामों को भी जंगे खुतूत पर अंजाम देने के लिए तफसीली जायज़ा लिया। इस इलाके में ड्रेन की खस्ता हालत और जाबजा गंदगी पर इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए वहां मौजूद अवाम को यकीन दिलाया कि आज पानी का मसला हल कर दिया है, बहुत जल्द ड्रेन सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा। मजलिस कॉरपोरेटर मीर मुमताज़ अली की खिदमत की मिसाली जज्बे की हर गोशा से सताइश की जा रही है। मदरसा हजरत शाह फेरोज़ अनवारुल उलूम बोधन का 22वां सालाना जलसा दस्तार बंदी का शानदार पैमाने पर इनेकाद।
مدرسہ حضرت شاہ فیروز انوارالعلوم ملحقہ جامعہ نظامیہ کا 22واں سالانہ جلسہ عظمت مصطفیٰ و جشن دستار حفظ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت علامہ مفتی محمد جمال الدین صدیقی قادری رضوی ممبئی، مولانا اکمل رضا قادری حیدرآباد نے کی۔ اس جلسے کی سرپرستی جناب احمد عبدالسمیع صدر مدرسہ نے کی۔ صدارت مولانا مفتی عتیق احمد نظامی نے کی۔ جلسے نگرانی مولانا سید عبدالباقی ثانی انواری نے کی۔ اس جلسے میں 5 خوش نصیب طلباء کو دستار حفظ و اسنادات و انعامات سے نوازا گیا، جن میں حافظ سید راحل قادری ولد سید کلیم قادری، حافظ محمد انس قادری ولد محمد ابراہیم قادری، حافظ شیخ ریان رضا ولد شیخ قاسم، حافظ سید ظہیر ولد سید شاد اللہ، حافظ محمد خواجہ معین الدین ولد محمد منیر الدین، محمد عبدالقدیر، محمد عبدالباسط، محمد معین الدین، محمد عادل بابر، سید یونس پاشا، محمد فیاض الدین قادری، محمد عبدالمجید قادری، حافظ وقاری محمد ذیشان رضا و حافظ وقاری محمد اشفاق رضا نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر علماء و عوام النساء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ پہلے رمضان سے 5 شبی شبینہ کا مسجد مدثر مدرسہ معاذ بن جبل میں انعقاد، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ بودھن میں پریس کانفرنس مولانا وسطانوی لائبریری انیسہ نگر میں منعقد ہوئی ہے، جس میں تمام حضرات کو اطلاع دی گئی ہے کہ کل 29 شعبان ہے، چاشمے کا دن ہے۔ کل مغرب میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ مسجد مدثر مدرسہ معاذ بن جبل ٹرسٹ بودھن میں پہلی تراویح سے 5 دن کے شبینے کا اس سال بھی انتظام ہے، جس میں مدرسے کے جدید حفاظ طلباء قرآن مجید سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ رمضان المبارک میں مسجد مدثر کی پہلی منزل کا دیواروں کا تعمیراتی کام شروع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کے بعد 12 شوال مطابق 1 اپریل کو بودھن کے حفاظ اور علماء اکرام کا عمرے کا گروپ روانہ ہو رہا ہے۔ عام حضرات بھی اس گروپ میں شامل ہونے کے لیے 21 مارچ تک اپنا پاسپورٹ مولانا وسطانوی لائبریری میں جمع کرائیں۔ آج کی اس اہم پریس کانفرنس میں مولانا محمد عبدالحمید ناظم مدرسہ معاذ بن جبل ٹرسٹ بودھن، مفتی یوسف قاسمی صاحب، حافظ شیخ نصیر صاحب، حافظ سردار صاحب، حافظ سفیان بیگ موجود ہے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ حضرات کو اطلاع دی جاتی ہے کہ کل 18 فروری 2026 کو چہارشنبہ یعنی بدھ کا دن ہے اور 29 شعبان 1447 ہجری ہے۔ کل 29 شعبان کو چہارشنبے کے دن چاند کے نظر آنے کی قوی امید ہے، لہذا تمام احباب رمضان کا چاند کل مغرب میں دیکھنے کا اہتمام کریں۔ چاند نظر آنے پر کل تراویح ہوگی اور جمعرات کا پہلا روزہ ہوگا۔ کل چہارشنبے کو اگر اتفاقاً چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر جمعرات کی تراویح ہوگی اور جمعہ کا پہلا روزہ ہوگا۔ اور دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ مدرسہ معاذ بن جبل کی مسجد مدثر میں رمضان کی پہلی تراویح سے ہر سال کی طرح اس سال بھی 5 دن کا شبینہ رکھا گیا ہے، جس میں مدرسے کے جدید حفاظ طلباء روزانہ 6 پارے تراویح میں سنا کر 5 دن میں تراویح میں قرآن کریم مکمل کریں گے۔ نماز عشاء مدرسے میں 8 بجے ادا کی جائے گی۔ خواہش مند حضرات سے شبینہ میں تشریف لانے کی گزارش ہے۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ مدرسہ معاذ بن جبل بودھن میں مسجد مدثر کا بالائی منزل کا چھت کا کام ہو چکا ہے۔ اب رمضان میں انشاءاللہ دیواروں کا کام شروع کیا جائے گا۔ جو احباب مسجد مدثر کے تعمیر میں اینٹ کے ذریعے سے، سیمنٹ کے ذریعے سے، ریتی کے ذریعے سے، مزدوری کے ذریعے سے یا فرشی کے ذریعے سے یا ٹائلز کے ذریعے سے یا کرنٹ کی وائرنگ کے ذریعے سے حصہ لینا چاہتے ہوں تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے کر ثواب جاریہ حاصل کریں یا کم از کم 1 تھیلا سیمنٹ کے لیے 400 روپے کا تعاون فرمائیں۔ گوگل پے نمبر نوٹ فرما لیں 701
3339। रमज़ान में सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन को शाम 4 बजे दफ्तर से घर जाने की इजाज़त। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी अहकाम जारी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान तमाम सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन, असातिज़ा, कंट्रैक्ट आउटसोर्सिंग बोर्ड्स, कॉरपोरेशनों और पब्लिक सेक्टर मुलाजिमीन को आज इजाज़त दी गई है कि वो दफातर स्कूलों से शाम 4 बजे रवाना हो सके। ये इजाज़त 19 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक के लिए दी गई है। ये इत्तला रियासती महकमों, पुलिस, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कलेक्टर, ज़िला मजिस्ट्रेट्स, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस और दीगर मुताल्लिक़ हुक्काम को फराहम की गई हैं ताकि अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना के स्कूलों को मार्च के दूसरे हफ्ते से आधा दिन का स्कूल। तेलंगाना हुकूमत ने बढ़ती गर्मियों के पेश नज़र स्कूलों के लिए अहम फैसला किया है। 16 मार्च से रियासत भर के स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 तक खुले रहेंगे और 12:30 पर दोपहर का खाना फराहम किया जाएगा। 10वीं जमात के इम्तिहानी मराकिज़ वाले स्कूलों में दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक क्लास जारी रहेगी। मौसम गर्मा की तातीलात 24 अप्रैल से शुरू होंगी और स्कूल दोबारा खोलने की तारीख 12 जून 2026 रखी गई है। आज शहर निज़ामाबाद के नौ मुंतखबा के उमरानी व इनके शौहर रमेश की मुजाहिद नूरानी व इनके दोस्त अहबाब की जानिब से की गई तहनीत। आज शहर निज़ामाबाद के नौ मुंतखब मेयर केर उमरानी व इनके शौहर रमेश की गुलपोशी तकरीब का नूरानी ज्वेलर्स आजम रोड की जानिब से इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें शहर निज़ामाबाद के कई अहम कायदीन ने शिरकत की और जिसमें एडवोकेट मुबीन अजहर, सुहेल, मसूद, मुईन, कदीर, अरशद, अजीज, सज्जाद व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इनकी शानदार कामयाबी पर इन्हें मुबारकबादी पेश करते हुए इनकी तहनीत की गई और शहर निज़ामाबाद के अक़लियती इलाके के मसाइल को हल करने के लिए नुमाइंदगी की गई। विचार करें जब पहला वो अपना ड्रेनेज का और रोड का और पानी का मसला जो भी है, मैं अप्रैल मई तक पूरा ख़त्म करके मैं जो वादा किया था वो निभाएगा। महेश कुमार का आशीर्वाद से मैं आज कॉर्पोरेशन का टिकट लेके हमारा को मेयर करने के भी उन्होंने आशीर्वाद किए। उनका तरफ से मैं जो भी है मसला पूरा फंड ला के अपने 49 डिवीज़न को पहला निज़ामाबाद में पहले डेवलपमेंट डिवीज़न का अवार्ड लेने का मैं कोशिश करेगा। श्रीकोंडा में साबिका सीएम केसीआर व साबिका रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन की जन्मदिन तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ तेलंगाना चौरास्ते में साबिका सीएम केसीआर और साबिका रूरल रुकने असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन की जन्मदिन तकारीब टीआरएस कायदीन के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पार्टी मंडल सदर NB श्रीनिवास ने कहा कि जहदकार तेलंगाना के पहले वजीर आला केसीआर और श्रीकोंडा मंडल के सुपूत बाजी रेड्डी गोवर्धन की जन्मदिन तकारीब को टीआरएस कायदीन के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई और इसके अलावा इनके दराजी उम्र के लिए मुख्तलिफ मनादिर में पूजा की गई। इस प्रोग्राम में मंडल सदर NB श्रीनिवास, P संतोष रेड्डी, लक्ष्मी नरसिंह श्रीनिवास, भूषण रेड्डी के अलावा अब्बास, रंजीत दीगर मौजूद थे। जुक्कल इलाके में तेंदुए की हलचल से अवाम में डर व खौफ तारी। जुक्कल के इलाके में तेंदुए की हलचल से अवाम में डर व खौफ पाया जा रहा है। गुज़िश्ता माह कबल जुक्कल मंडल के दोसपल्ली मुस्तक़िर पर एक शेर फौत होने का वाक़या अवाम को अच्छी तरह से मालूम है। इस दौरान हर रोज़ बंगारूपल्ली, डोनगांव, मेबीपुर, शक्तिनगर, पेद्दायडगी मज़ाफ़क़ती इलाके में तेंदुए घूमने से मुतालिक निशानात हासिल करने का महकमे जंगलात ओहदेदारों की जानिब से बताया गया। फिर दोबारा सवारा गांव मुस्तक़िल से बसापुर मज़ाफ़क़ती इलाके में
तेंदुए घूमने के ताल्लुक से मुख्तलिफ किसानों की जानी मुकामी सरपंच को आगाही फराहम करने के फौरी बाद महकमे जंगलात ओहदेदारों को इत्तला फराहम की। इससे मुतालिक मालूमात हासिल करने वाले महकमे जंगलात ओहदेदारों ने मौजू के अवाम के हमरा तेंदुए घूमने के मुकाम की निशानदेही किया और कहा कि तेंदुआ मादा चीता है और इसके साथ दोनों छोटे तेंदुए के हमरा घूमने के ताल्लुक से निशानात हासिल करने का इजहार किया। देहात में किसानों और चरवाहों और मजदूरों को मशवरा दिया गया है कि वो अपने जरिए काम पर जाते वक्त चौकस रहे और वीरान इलाकों में ना जाने की ताकीद की। तेलंगाना के पहले वजीर आला बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव की जन्मदिन तकारीब चंदूर में शानदार पैमाने पर मुनक्किद की गई। तेलंगाना के पहले वजीर आला बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव की यौम पैदाइश के मौके पर चंदूर मंडल बीआरएस पार्टी सरपंच एम माधवा रेड्डी के जेर एहतमाम केक कट करते हुए मुकामी अवाम की जानिब से केसीआर को जन्मदिन की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर सरपंच एम माधवा रेड्डी ने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क की तमाम जमातों को मुतासिर करते हुए कायल किया। वो इनके दौरे हुकूमत दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करते हुए एससी की जिंदगी में खुशहाली लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में घनपुर संजू नारायण, लक्ष्मापुर नारायण, नवीन, सुभाष, पी गंगाराम, यूसुफ, वार्ड मेंबर्स, शेख पाशा, बीआरएस पार्टी कारकुनान कायदीन ने शिरकत की। सालुरा मंडल के मुकाम पर शिवरात्रि के दिन कुश्ती के मुकाबला जात का किया गया इनेकाद। सालुरा मंडल के मुकाम पर दूसरे दिन कुश्ती के मुकाबला जात का इनेकाद अमल में लाया गया। इसमें महाराष्ट्र से आने वाले मल्ला पहलवान ने शिरकत करते हुए अपनी ताकत का बेहतरीन मुजाहिरा किया। सालुरा के अवाम के अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की कसीर तादाद ने जोश व खरोश के साथ कुश्ती के मुकाबला जात का मुशाहिदा किया। गाँव वालों का कहना है कि इस कुश्ती के मुकाबला जात को हर साल एक रिवायत के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। गांव की हमा जहद तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के साथ खिदमत अंजाम देने की कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने की अपील। जिला के मराकिज पर वाक़े नयाक भवन में नौ मुंतखब ख़वातीन सरपंचों के लिए क़ियाम अमल में लाए गए तरबियती प्रोग्राम में कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने अज़ खुद सरपंचों के इख्तियारात, फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों के बारे में वजाहत करते हुए बेदारी फराहम की। कलेक्टर ने 5 दिन तक मुनक़िद होने वाली तरबियती क्लासेस से इस्तेफ़ादा करने की ताकीद की और तमाम शोबे जात में ख़वातीन को नुमाइंदगी फराहम करने की नेक नीयती से इस मुकामी इदारों में ख़वातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं। कलेक्टर ने ख़वातीन को इस मुतवक़्क़े का भरपूर इस्तेमाल करते हुए गाँव में मौसर हुक्मरानी फराहम करने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ात को बामाना बनाने की ताकीद की और गाँव के इंतज़ामिया में अपने ख़ानदान के अफराद को दखल अंदाजी ना देते हुए देहात की शहरी होने की ज़िम्मेदारी को बखूबी अंजाम देते हैं तो ये मुस्तक़बिल में सबसे आला ओहदों पर काम करने के मौक़े फ़राहम करने का इजहार किया। अवाम मुझे फरामोश करते हैं तो मुकाबला नहीं करूंगा। कामारेड्डी बीजेपी दफ्तर में मुनाकिदा मीडिया इजलास से मुकामी एमएलए काटेपल्ली वेंकटा रामना रेड्डी का इजहार। जिला कामारेड्डी के मराकिज पर वाक़े बीजेपी पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से मुकामी एमएलए काटेपल्ली वेंकटा रामना रेड्डी ने खिताब के दौरान कहा कि साल 1959 से मोहम्मद शब्बीर अली की सियासत ज़िंदगी से मुताल्लिक़ मुकम्मल शवाहिद मौजूद है। इन्होंने कहा कि उस वक्त आपकी जायदाद कितनी थी और अब कितनी है के ताल्लुक़ से सवाल किया। एमएलए ने कहा कि शब्बीर अली ने बग़ैर इजाज़त के घर तामीर किया है, वहां आसपास फायर इंजन भी नहीं जा सकता। आप किस तरह के कायद हैं? एमएलए ने कहा कि अरोरा कॉलेज के लिए मेरे वालिद मोहतरम यामई एक भी गज अराजी फरोख्त करने के बिना पर कामारेड्डी में सर मुंडवाते हुए बगैर मूछ के फिरने के ताल्लुक से चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि कामारेड्डी में आप और आपके भाई ने गैर मजाज कब्जा जात किया है, इससे मुताल्लिक़ मुकम्मल शवाहिद इनके पास मौजूद होने का इजहार किया।
ఈ దొర నవాబు రజాకర్ అనుకుంటున్నాడు, ఫకీర్ వేషం వేసుకుంటూ. కులం ఫీలింగ్ లేదు నాకు, మతం ఫీలింగ్ అసలే లేదు. మైనార్టీలకు నేను చెప్తున్నా, ఈడు మైనార్టీ అని చెప్పి మీరు మైనార్టీలంతా ఆయనకు సపోర్ట్ చేసుకుంటూ తిరిగినన్ని రోజులు మీరు బాగుపడరు. ख़वातीन, बुजुर्ग और माजूरीन को कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को रूबे अमल में लाने का तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने हुकूमत से किया मुतालबा। हैदराबाद के बेगम पेट में वाक़ प्रजा भवन के रूबरू तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने मुख्तलिफ कायदीन के हमरा रास्ता रोको एहतजाज किया। इस दौरान इन्होंने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की पहल से ख़वातीन के वजीफ़े में इजाफ़ा करने के साथ साथ 1 तोला सोना देने का हुकूमत से मुतालबा करते हुए इससे मुतालिक अर्जी को प्रजवानी नोडल ऑफिसर दिव्या को हवाले किया। इन्होंने कहा कि म्यूनसिपल इंतखाबात में बीजेपी और बीआरएस ने इत्तेहाद किया है और इसके अलावा बीआरएस की मेहरबानी से बीजेपी को एक दूसरी म्यूनसिपल चेयरमैन सीट हासिल होने का इजहार किया। बरदरान इस्लाम के लिए ज़रूरी इत्तला चांदराज से मेमन फंक्शन हॉल अहमदपुरा में 10 दिन शबी शबीना का एहतमाम। अल्हम्दुलिल्लाह, निहायत मसरत और शादमानी के साथ ये इत्तला दी जाती है कि माह रमजान मुबारक के पहले अशरे में मेमन फंक्शन हॉल अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद में 10 शब शबीना का एहतमाम किया जा रहा है। हाफिज कारी मोहम्मद अरबाज रजा साहब रोजाना नमाज तरावी में 3 पारे सुनाने की सआदत हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह नमाज इशा ठीक 9 बजे अदा की जाएगी। मस्जिद आलिया जवाज जहीराबाद की इफ्तिताही तकरीब में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने की शिरकत। वो किया खिताब। आज रियासती मुशीर मोहम्मद अली ने अपने जहीराबाद के दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया और मस्जिद आलिया जवाद की इफ्तिताह तकरीब में शिरकत की, जिसमें मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद सैफुल्लाह, मीर जवाद अली और सदर मस्जिद जावेद अली व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इन्होंने मस्जिद में खिताब करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। नौ मुंतखबा निज़ामाबाद में डिप्टी मेयर व कॉरपोरेटर्स को मौलाना मोहम्मद बशीर अहमद रजवी ने पेश की मुबारकबादी। जैसे कि सारे निज़ामाबाद की आवाम जानती हैं कि हालिया दिनों में बल्दियाती इंतखाबात निज़ामाबाद और उसके इर्द गिर्द वाक़े हुए और इलेक्शन के नताइज भी आए और जिसमें हर पार्टी ने अपना प्रचार करते हुए अपनी मेहनत और मशक्क़त से अपनी कैंडिडेट को जिताने में कामयाब भी रहे और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे ज़िले निज़ामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब भी हुआ। MIM और कांग्रेस की इत्तेहाद से, और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर दोनों लेडी अपने मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी को उन्होंने हासिल किया है कि काबिल मुबारकबाद भी हैं, अच्छी चीज़ भी है। और साथ ही साथ इलेक्शन को मिलते होते बाज़ लोगों ने इसमें मतलब कि कुछ लोग जो हमेशा हिंदू मुस्लिम या गैर ज़रूरी नारे लगाते हुए इंतशार करने की कोशिश करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने भी मतलब कि अपना सख्त बंदोबस्त रखते हुए इस नताइज में और इस इलेक्शन में बड़े ही पुराना तरीक़े से इनके मुद्दत को और ये मतलब कि और इन अयाम को बड़े एहतमाम और अच्छे अंदाज में सियानती बंदोबस्त के साथ किया। पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ हम तमाम अवाम निज़ामाबाद से ये गुजारिश करते हैं कि हमेशा आप इसी तरह मिलजुल के रहिए और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब हमारे बिरादरान वतन हैं, हम भाई हैं और मिलजुल के रहना चाहिए और हमारे मुल्क भारत को बिल्कुल एक अच्छी तरक्की पर जो पहुंच रहा है उसमें हम सबको एक साथ में रहकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे जितने हमारे बिरादरान हैं वतन में बिरादर आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। यही हम अपील करेंगे और आइंदा भी मतलब कि हमें एक मतलब कि तासुब या हमारे नज़रियात में इस तरह की बात नहीं आना चाहिए कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, ईसाई है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल एक हमारा भी एक
अभी के हालिया बल्दिया इंतखाबात में ये हुआ कि नंबर डिवीज़न 12 में माशाल्लाह एक अतियत तनाद नाम से बच्चे ने जो गैर मुस्लिम हैं वो यहाँ से इन्होंने मुकाबला किया और कांग्रेस पार्टी से। तो यहाँ डिवीज़न 12 में काफ़ी तादाद में मुस्लिम और कसीर तादाद में मुसलमान रहते हैं। तो मुसलमानों ने मतलब यहाँ किसी को ये नहीं देखा कि ये गैर मुस्लिम है या इनकी कोई ज़ात है, नहीं, बल्कि ये समझा कि बिल्कुल एक बच्चा अच्छा है और मेहनती है, तो लिहाजा इसके मज़हब और इसके मतलब कि दीन की तरफ नहीं, अच्छा लीडर है, इसको ये सोचते हुए मुसलमानों ने कोऑपरेट किया और भारी अक्सरियत से अदितिया को मतलब 12 नंबर से डिवीज़न से जिताया। ये निज़ामाबाद के एक अहम मिसाल है। तो लिहाजा इसमें पता चला मुसलमानों ने इस बात का खुला सबूत दिया कि हम कभी किसी मतलब फ़िरक़ा परस्ती में या तासुब की नज़र से नहीं देखते हैं, बल्कि हम भारत के संविधान में यकीन भी रखते हैं, विश्वास भी रखते हैं और हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, एक और एक साथ चलेंगे और आगे भी इसी तरह भारत को मतलब के सातवें आसमान पे ले जाएंगे। यही हमारी गुजारिश है, अपना भाईचारगी बना के रखें और आगे बढ़ें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गुजारिश करूँगा सब मिलजुल के रहें। अख्ताम से कबल नज़र डालते आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद में साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जन्मदिन तक़ारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। टीआरएस पार्टी कायदीन व हामियों ने केक कट करते जश्न का किया इनेकाद। तेलंगाना के स्कूलों को मार्च के दूसरे हफ्ते से आधा दिन का स्कूल। गांव की हमाजहद तरक्की के लिए खुसूसी दिलचस्पी के तहत खिदमात अंजाम दे। ख़वातीन सरपंचों की तरबियती प्रोग्राम से कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी। अवाम मुझे फरामोश करते हैं तो मुकाबला नहीं करूंगा। कामारेड्डी बीजेपी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से एमएलए काटीपल्ली वेंकटा रामना रेड्डी ने किया इज़हार। हैदराबाद में वाक़ प्रजा भवन के रूबरू तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने किया एहतजाज। बुजुर्ग व माजूरीन के वजीफे में इजाफा करने का हुकूमत से किया मुतालबा। रमज़ान में सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन को शाम 4 बजे दफ्तर से घर जाने की इजाज़त। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी अहकामात जारी। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।